Next fourth point from applications of derivatives, Rolle's theorem and NMAT. First of all, Rolle's theorem देख लो क्या है ये Rolle's theorem यानी for देख लो क्या है ये y equal to f of x is the real value function. If y equal to f of x, y equal to f of x is the real value function such that first one f of x is continuous on a comma b. Y is the real valued function. देख लो क्या है y is the real valued function of real variable such that f of x is continuous on a comma b. Second one f of x is differentiable on a comma b यानी open interval. Then ये third one f of a equal to f of b. यह है देख लो for Rolle's theorem के लिए y equal to f of x is a real value function. Is a real valued function. Real valued function of real variable. Then and क्या होता फिर f of x is continuous on a comma b यानी a से लेके b तक एक क्लोज इंटरवल है. Then y f of x is differentiable on a comma b. Here है open interval. Then f of a equal to f of b. Then there exists यानी means यानी what Rolle's theorem the given function Rolle's theorem is exists. देख लो क्या है यानी the given function satisfied all the conditions of Rolle's theorem. Therefore क्या है the given function f of x क्या है satisfied all conditions of Rolle's theorem. ये है of Rolle's theorem. क्या है the given function f of x satisfied all the conditions of Rolle's theorem. Then और ये है then there exists c क्या है belongs to a comma b. There exists c belongs to a comma b. देख लो a comma b such that ये ऐसा है such that f dash of c equal to 0 यानी it is known as verification of theorem. ये first of all ये जो है ना y equal to f of x is a real value function of real variable. f of x ये continuous होना on closed interval. f of x ये differentiable होना on open interval. और f of a equal to f of a, then we can say that the given function f of x satisfied all the conditions of Rolle's theorem. Then there exists c belongs to a comma b. a और b के बीच में c ऐसा होना such that f dash of c equal to 0. It is known as verification of theorem. ये है तुम्हारा Rolle's theorem. इसके बाद देख लो एलियनविटी के लिए. इसके बाद है एलियनविटी. एलियनविटी के लिए सेम y equal to f of x. y equal to f of x is a real valued function. f of x is continuous on a comma b. f of x is differentiable on a comma b. Then ये third one f of a equal to f of b. Therefore the given function है ये सेम होना. अभी क्या होना सपोज ये एलियनविटी के लिए इतना काफी है. f of x is continuous on a comma b. f of x is differentiable. Therefore the given function f of x satisfies all the conditions of एलियनविटी. देख लो एलियनविटी ये है Rolle's theorem. Sorry एलियनविटी. Then ये conditions of एलियनविटी
कंडीशंस ऑफ एलिजिबिलिटी यानी और कंपलसरी फंक्शन कंटीन्यूअस होना, उसके बाद डिफरेंशिएबल होना, then we can say that given function f of x satisfies all conditions of Rolle's theorem है, यह है satisfies all condition of Rolle's theorem। देख लो क्या ये, then there exists क्या है ये, C belongs to A, B such that f dash of C है, f dash of C equal to f of B minus f of A by B minus C। It is known as verification of theorem। देख लो क्या ये एलिजिबिलिटी के लिए ये है तुम्हारे लिए एलिजिबिलिटी के कंडीशंस। देन ये फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग फंक्शंस। याद रखो ये। ये फिफ्थ पॉइंट है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शंस। ये फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देख लो क्या ये है, लेट यहाँ पर let f be the function from A to R, f be the function from A to R, this is the real function। देख लो क्या है ये रियल फंक्शन। उसके बाद ये x1 less than x2, क्या ये x1 less than x2 implies f of x1 less than equal to f of x2। देख लो क्या है ये, यानी for all x1 comma x2 belongs to A, x1 comma x2 belongs to A, then it is known as increasing। याद रखो ये is, then f is increasing है, ये increasing याद रखो। then again दूसरा x1 less than x2 implies f of x1 greater than equal to f of x2। इसके लिए सेम कंडीशन, f is क्या है, डिक्रीजिंग, ये है डिक्रीजिंग की कंडीशन। देन नेक्स्ट वन x1, देख लो फिर क्या है, x1 less than x2 है, x1 less than x2, ये क्या है f of x1 less than f of x2 for all। ये f is what, f is strictly increasing। ये है strictly increasing, याद रखो। और उसी तरह ये क्या है, फोर्थ वन x1 less than x2, ये है f of x1, ये लेस देन ग्रेटर देन क्या आता है, ये f of x2, ये एज इट इज f is क्या है, ये strictly decreasing। ये है तुम्हारे लिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस। उसके साथ साथ सबसे बेस्ट वे देख लो, सबसे बेस्ट वे सबसे बेस्ट देख लो, f of मेन पॉइंट दे लो, f of x is differentiable at x equal to A and f dash of A positive है, positive, then f of x is क्या ये इंक्रीजिंग। फर्स्ट वन अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर ये भी बहुत हुआ। देन सेकंड वन क्या ये, f of x is क्या ये डिफरेंशिएबल at x equal to A and क्या ये f of A less than 0, then f of x is क्या ये decreasing। ये है
डिक्रीजिंग फंक्शन, याद, ये है डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके साथ साथ हम जो भी पॉइंट्स है वो तुम देख सकते। मिनिमम ऐसा तो भी याद, मिनिमम ये तो भी याद रखो, डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो यू कैन से दैट इंक्रीजिंग, और डेरिवेटिव नेगेटिव है यू कैन से डिक्रीजिंग। उतना याद रखो, बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करते समय अपने आप प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, देन उसके बाद जो पॉइंट्स है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, हाँ देख लो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। मैं तुम्हारे इसमें एक शीट प्रोवाइड करूंगा स्पेसिफिक पॉइंट्स की प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोटोनिक फंक्शन। यू कैन से देम बाद में नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शन तुम देख सकते हैं। सबसे बेस्ट वे याद रखो, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए बेस्ट क्या है, ये इंक्रीजिंग यानी व्हाट, ये फॉर्म है, ये ऐसा है, ये ऐसा इधर इंक्रीज होते जाता है, और ये डिक्रीजिंग के लिए हम उसको ये ऐसा नीचे, ये ऐसा डिक्रीज हो जाता है। ये है फॉर इंक्रीजिंग, ये है फॉर डिक्रीजिंग, यानी व्हाट dy by dx ये पॉजिटिव है और ये dy by dx क्या है, ये नेगेटिव है। ये है इंक्रीजिंग एज वेल एज डिक्रीजिंग। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट देख लो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा 6 और लास्ट पॉइंट है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा, याद रखो 6th एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये 6th और लास्ट पॉइंट है मैक्सिमा एंड मिनिमा, याद रखो maximum as well as minimum value of the functions। इसमें suppose we have to find maximum and minimum value of the function। ये y को तो suppose f of x हमारे पास एक फंक्शन है, and first ये कंडीशन है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। याद रखो, पहले यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यूज necessary and sufficient necessary conditions for extreme values and stationary values of x। ये दो तीन पॉइंट्स है, बराबर थोड़ा देख लो। इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, इसके लिए याद रखो, पहले याद रखो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यानी व्हाट, फंक्शन y equal to f of x, function y equal to f of x is said to have maximum, maximum value of f of x at x equal to t। देख लो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए y to f of x is said to have maximum value of f of x at x equal to a। maximum value यानी ये फॉर्म या ये ऐसा, यानी ये maximum value at x equal to a, x axis y axis है। देख लो क्या है, फर्स्ट वन कंडीशन f dash of a equal to 0 1, ये फर्स्ट सेकंड f dash of a minus delta के लिए पॉजिटिव, और सेकंड वन f dash of a plus delta, ये क्या होता है, लेते हैं। देख लो y to f of x is said to have maximum value of f of x at x equal to a, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू हमारा यहाँ पर आता है, ये वैल्यू at x equal to a। फर्स्ट ऑफ ऑल f dash of a to 0 होना, then f dash of a minus delta, देख लो यार f dash of, यहाँ पर लेता हूँ यार, ये सेकंड वन f dash of a minus delta है, ये है ग्रेटर देन 0, एंड f dash of a प्लस डेल्टा क्या है, लेस देन 0, ग्रेटर देन और लेस देन। ये है हमारे लिए
फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेट टू अ मैक्सिमम वैल्यू, और इन द सेम वे मिनिमम के लिए, और इन द सेम वे मिनिमम के लिए सपोज देख लो क्या है मिनिमम वैल्यू यानी व्हाट, ये फॉर्म में सपोज ये हमारा फंक्शन ऐसा है कि ये ऐसा ये मिनिमम है एट एक्स इक्वल टू सेम वे 0, अब ये क्या होना लेस देन और ये क्या होना ग्रेटर देन ना। मिनिमम वैल्यू के लिए f dash of a minus delta less than f dash of a plus delta greater than, बाकी सेम, इट इज नोन एज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। याद रखो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी व्हाट, ऐसा होता है देख लो, इफ f dash of a equal to 0, f dash of a equal to 0, f dash of a minus delta greater than 0, f dash of a plus delta दोनों भी पॉजिटिव, और f dash of a minus delta less than 0 और f dash of a plus delta less than 0, right? ये है तुम्हारे लिए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसलिए याद रखो ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी व्हाट, नाइदर मैक्सिमम और नॉट मिनिमम, यानी एट एक्स इक्वल टू ए वी कांट गेट मैक्सिमम एज वेल एज मिनिमम वैल्यू, यानी व्हाट मैक्सिमम, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम एट एक्स इक्वल टू ए, इट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पर हमें मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद देख लो ये, और बाद में तुम्हारे लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद देख लो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट देख लो, ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट इसके लिए क्या होना है, y इक्वल टू f ऑफ x के लिए फर्स्ट वन फाइंड क्या होना है, फाइंड f डैश ऑफ x एंड f डबल डैश ऑफ x। वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। देन क्या है ये सेकंड वन, f dash of x equal to 0, you will get here stationary value, stationary point where you will get maximum and minimum value. After taking f dash of x equal to 0, here you will get x equal to x1 and x equal to x2. ये point, these are known as extreme values, extreme points where you will get maximum and minimum values. Then third one क्या ये, if f double dash of x1 greater than 0, greater than रहा, you will get क्या ये minimum value, यहाँ पर मिलता है हमें minimum value। और ये फोर्थ में इसमें f double dash of x2 suppose less than 0 है, then you will get maximum value of f of x at x equal to, यहाँ पर x1 के लिए मिनिमम मिलेगा और x2 के लिए मैक्सिमम। दिस इज नोन एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एज वेल एज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। देखो क्या है, क्या ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाद में ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। उसके बाद तुम्हारे लिए बहुत कुछ एग्जांपल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो एज इट इज रेफर करना है। ये जो पॉइंट्स है मैं तुम्हारे शीट में प्रोवाइड करूंगा, बाकी पढ़ाने के लिए यू शुड नो मिनिमम दिस पॉइंट, इसके सिवाय एक्स्ट्रा पॉइंट्स तुम खुद स्टडी करके ले सकते हो।